Hello, dear students. I'm Manujan Pradhan speaking from Base English classes. This COVID lockdown has made so many people think about using different options, and we ourselves, being in the profession of teaching, we are also compelled to think about some other means of teaching the students. And in that context, we decided to go online, and we're going to produce series of lectures which I think will be of much help to the students. And in that series, we'll be sending you study materials by uploading them on digital platforms so that they can be of help to the students, and the students will take help of them, and they will be improving their English skills. And the series of lectures that we'll be uploading will be student specific and their interest specific. So in the series today we're going to introduce some facts. When we learn any language, generally what happens for the native speakers, they take the help of atmosphere, and they come to know about they come to learn about their language. But suppose the language is some alien language, foreign language, in that situation the learner has to take the help of grammar. So before studying grammar, what is important is we have to realize it was how much grammar to study, and from what point to study. These things are very, very important. For that reason, I think in our initial classes, so many conceptual things will be made clear to the students, and hope the students will be taking benefit of them. So when we start, this is our first class. In the first class, we will be discussing some basic facts which we generally have to know when we learn grammar, when we go to study the grammar of English. So our course is titled An Outline on English Grammar. This is the name of the course, and under this heading you are going to learn all the things. So the first chapter of our course is chapter 1. This is chapter 1. Some basic concepts. In this chapter, we're going to tell you what we study when we go to learn the grammar. Which points have to be studied? The first point is language. So when you learn any language, it must have to be clear what is the meaning of language. Language is a medium of communication in which sentences are used. My handicap is to make you feel comfortable, I will be speaking some quantity of Hindi for your facility, and so that you'll feel comfortable. Language means भाषा, सूचना आदान प्रदान करने का एक माध्यम जिसमें वाक्यों का प्रयोग किया जाता है. That is language. The next point is, the first one in the language, when you went to study the language, you came to know that in
a language, you have to make use of sentences. So in the next point, we are going to discuss, we are going to know what it means by sentence. Sentence. For a common man, for a layman, a group of words giving a complete sense. एक साधारण आदमी के लिए सेंटेंस का मतलब होता है एक शब्दों का एक समूह जहां से पूर्ण अर्थ निकले. That is, but this knowledge is not sufficient enough for a student of grammar, and also for a teacher of English. It has to be very much clear. The teacher has to know that this is not going to, give all the information about what it means by sentence. So the next point will be necessary. That is, you have to know what happens in the sentence. That is technical meaning of sentence. Technical meaning of sentence means तकनीक के दृष्टिकोण से वाक्य का मतलब मीन्स वाक्य में होता क्या है. हर वाक्य में कोई ना कोई चीज के बारे में एक चर्चा होती है. मीन्स इन एवरी सेंटेंस देयर इज मेड अ डिस्कशन अबाउट समथिंग. ओके, मीन्स समथिंग प्लस ए discussion. Something plus a discussion. जिसके बारे में चर्चा होती है उसको ग्रामर के हिसाब से कहते हैं सब्जेक्ट, और जो चर्चा होती है उसको ग्रामर के हिसाब से कहते हैं प्रेडिकेट. मीन्स सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट is equal to sentence. Means subject plus predicate will constitute the sentence, will make the sentence. As subject, you make use of either noun or noun equivalent. Means noun या noun के बदले में प्रयोग किया गया शब्द, that is pronoun. सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, और प्रेडिकेट के रूप में इन द प्रेडिकेट वी मेक यूज ऑफ वर्ब प्लस अन्य शब्द, अदर वर्ड्स. वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. दैट इज एज सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन, एंड एज प्रेडिकेट we make use of verb plus other words. For example, fan is moving speedily. इस वाक्य में पंखा के बारे में चर्चा हो रहा है. क्या चर्चा हो रहा है? तेजी से चल रहा है. In the predicate, one thing has to be very clear, that is, suppose you took away speedily or you eliminated the word speedily. अगर आप speedily को काट दोगे तो भी सेंटेंस जीवित रहेगा. दैट इज पंखा चल रहा है. बट पंखा चल रहा है को अगर काट दोगे तो प्रेडिकेट नहीं बन पाएगा. सो इन द प्रेडिकेट व्हाट इज टू बी रियलाइज्ड इज देयर मस्ट बी प्रेजेंट ए वर्ब फॉर्म. कौन सा वर्ब फॉर्म? जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है. द वर्ब फॉर्म दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स with the subject. मीन्स क्रिया का वो रूप जो सीधा सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाए. दैट इज मूव. मतलब क्या? चलना क्रिया का कई सारे रूप हैं. चलना, चलता हुआ, चल रहा, चल रहा है, चलकर,
चलेगा, चलता था, या सो मेनी फॉर्म्स यू फाइंड इन हिंदी. अब चलना, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी चल मूव का कई सारे रूप होंगे. उनमें से कुछ रूप डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ जाते हैं. अब माय पॉइंट इज, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के बीच में अंतर क्या है? जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में वाक्य में चर्चा होती है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट. लेकिन दैट इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या प्रोनाउन को ही इस्तेमाल करते हैं. बट टू से दैट every noun is a subject, that is not like this. Whether that noun is used as a subject or not, that has to be seen, that has to be realized on the basis of use. That is. प्रेडिकेट में एक क्रिया का रूप होना अनिवार्य है जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाए, और क्रिया का जो रूप सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाए उससे ग्रामर के हिसाब से टेंस कहते हैं. दैट इज टेंस मीन्स क्रिया का जो रूप डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाए. तो दैट इज, फर्स्ट वी स्टडीड लैंग्वेज, देन वी स्टडीड सेंटेंस, देन वी स्टडीड टेक्निकल मीनिंग ऑफ सेंटेंस. सो you have to, realize when you listen any sentence, when you find any sentence, when you make use of any sentence, it must have a subject part and a predicate part. That is, and as we go on studying more and more, we will be learning more and more things about subject and predicate. Next, point number 4, types of sentences. Types of sentence. वाक्यों का प्रकार. वाक्य कितना प्रकार के होते हैं, और purpose is to make ourselves able to write sentences, make sentences, listen sentences, understand sentences. So you have to be very much clear about the types of sentences that you have to learn. तो वाक्यों का प्रकार कितने होते हैं? नंबर 1, affirmative. Affirmative को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य. दैट इज साधारण वाक्य. नंबर 2, एग्जाम्पल है फैन इज moving. Number 2, negative sentence. नेगेटिव मतलब क्या? नकारात्मक वाक्य. पंखा नहीं चल रहा है. फैन इज नॉट मूविंग. पंखा नहीं चल रहा है. नकारात्मक वाक्य. दैट इज. तीसरा, प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्न जब पूछते हो, क्या ट्रेन आ रही है, कौन यहां पढ़ता है, रायगढ़ किस प्रकार की जगह है, इस प्रकार के वाक्य को बोलते हैं. जब आप सवाल करते हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. जैसे इज फैन मूविंग, क्वेश्चन मार्क. क्या पंखा चल रहा है. मैं जानबूझ के द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं. भले ही जब आप राइटली सेंटेंस को लिखोगे, व्हेन यू राइट दिस सेंटेंस करेक्टली यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ आर्टिकल द. लेकिन हिंदी में जैसा दिखाई दे रहा है उस प्रकार से मैं बात को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं. सो इसलिए मैं यहां पर जानबूझ के द को नहीं लिख रहा हूं. माय पर्पस इज टू मेक यू feel how it is in Hindi, and in same way when you go to make it, okay, we have to do like this. इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पर द को नहीं लिख रहा हूं. That is introverted. Next, number 4, आदेशात्मक या प्रार्थनावाचक. क्या? पंखा को चलाइए. That is imperative, आदेशात्मक वाक्य. IMPERATIV, imperative sentence. imperative माने आदेश, प्रार्थना, उपदेश, इस टाइप का वाक्य. पंखा को चलाइए. मूव
पंखा को चलाइए। आदेश प्रार्थना इस प्रकार के वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। पंखा को मत चलाइए, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। गरीबों की मदद कीजिए, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। समय बर्बाद मत कीजिए, दैट इज ऑल्सो इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 5, कल्पना, इच्छा और चाहत। यदि मेरे पास पैसा होता, यदि बारिश हो रही होती, यदि उसका घर होता, हर कोई अमीर बने, आपको यह नौकरी मिले, इस टाइप का वाक्य जो है उसको कल्पना, इच्छा और चाहत प्रकार से उसको जाना जाता है। इनको कहते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब कल्पना, इच्छा तथा चाहत। एग्जाम्पल के लिए, इफ फैन वेर मूविंग, यदि पंखा चल रहा होता। यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, यदि मैं वहां जा रहा होता। इफ आई वर गोइंग देयर, इफ आई वर गोइंग देयर बन कैसे रहा है तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जैसे आप हिंदी में सुनते हो, यू डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिल दैट दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अभी आपको बस इतना ही फिल करना है। नाउ योर ओनली वर्क इज टू रियलाइज योर सेंटेंस बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी फ्रॉम अमंग दिस। इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये आपको बस जानने की अभी जरूरत है। दैट इज नंबर 6, विस्मय या आश्चर्य। जैसे इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। क्या बारिश हो रही है? क्या ट्रेन चली गई है? वाह, आपका आंसर बहुत अच्छा है। उस प्रकार के वाक्य। एक्सक्लेमेटरी में क्या होते हैं? बोलने वाले का सडन रिएक्शन, प्रतिक्रिया। वो जो प्रतिक्रिया है, खुशी का भी हो सकता है, आश्चर्य का भी हो सकता है, हताशा का भी हो सकता है, उस प्रकार। जैसे एग्जाम्पल के लिए, स्पेस यहां पर ना होने के कारण मैं यहां पर लिख रहा हूं, व्हाट कॉमा फैन इज मूविंग, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयबोधक संकेत। क्या पंखा चल रहा है? दैट इज। क्या ट्रेन चली गई है? क्या आज ऑफिस बंद है? उस प्रकार के वर्ड। जैसे सडन रिएक्शन, जो रिएक्शन है वर्ड से निकल रहा है। सो साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेश या प्रार्थना, कल्पना, इच्छा और चाहत, और ये विस्मयबोधक वाक्य। Up to this point, what we came to know that when you go to make use of the sentences, the sentence will definitely be one of the 6. Suppose कोई आपको कहता है कि वाक्य का प्रकार कितना है, अगर कोई कहे 7 या कोई कहे 10 या कोई 3, so that doesn't matter. What is important is, अगर आप आपका हर वाक्य को आपके कहा गया प्रकार से, जैसे आपने बोला 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, और आप हर वाक्य को 3 में प्रूव कर लिया, योर आंसर विल आल्सो बी राइट। किसी ने कहा 10 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन उसने, वह आदमी सपोज कि कोई ना कोई वाक्य को प्रमाणित नहीं कर पाया 10 में से किस कैटेगरी में आता है, तो हिज आंसर आल्सो विल बी रॉन्ग। सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू टेल द नंबर ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट हैव टू बी एबल टू प्रूव whether your sentence belongs to the number of sentences that you have mentioned. जो बताए हो उसके अंदर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, that has to be clear. So अभी आज का जो क्लास अभी तक था उसमें हम लोग क्या डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, our next lecture we will proceeding continuing the study of, but this chapter is going to continue. There's some up to some 8 or 9 points. So up to now we have just studied 4 points. In the next classes we're studying parts of speech, clauses, phrases, and other units of language. And so that is
for today, up to this point, okay, um, you have to be clear. Means, or I mean, the things which are highlighted today are number one, types of sentences and this subject and predicate. So let us start today's class.